begin rhinoplasty for a patient. He complains of a nasal dorsal hump, as we can see. He has a nose which is quite long in length and his tip is little droopy, pointed downwards. He wants his alar base to be reduced, the overall width to be reduced, and a nose which is proportionate to his face. Objective desires, no breathing difficulty. We'll be doing a cosmetic rhinoplasty for him. Patient is? So weight is 52, huh? 55. 55, okay. Pali. काही करताना Cut. Yeah? So we're starting rhinoplasty for this patient, and he's desirous of getting that hump corrected, some work on the tip, radix, also septum. Got the dorsum absolutely in a straight line here, you can see this. So we've not done an osteotomy, but I've done a lot of rasping and burring and sculpting from inside. Was open structure rhinoplasty, did a septoplasty, we've done septal harvest, we've used the tip, we've done tipplasty, we've used some grafts on the sides as well on the alar cartilage and into the columella, and eventually also some base resection. So this is what we get. We're going to show you some other views. Yeah, you can see those views, even the side view, every view, one by one. You can show it across there. So there you see again. So this was basically an over-projected nose, but just at the tip, the columella relationship, width. You're going to see that in another view, just a moment. Show the basal view now. Yeah, and this is the view that's going to see the maximum difference. Again, you see the relation of the alar to the face, the angle the columella is making onto the lip, the nasolabial angle. The tip has been made much pointy. He doesn't have very thick skin, but neither does he have thin skin. And we've also contoured the alar base to give him a nice oval, elongated layers.
हो गया 1 मिनट। கடல் யார் இருக்கா? Hello everyone, a rhinoplasty patient, 7 days post surgery. We're about to remove the splint for him, the nasal splint. मैं स्प्लिंट निकाल रही हूँ, आप तब तक बोल सकते हो आपके कंप्लेंट्स क्या थे, आप राइनोप्लास्टी यहाँ पे क्यों करवाने आए? मेरा ये ब्रॉड था, नोज़ ब्रॉड लगता था। ओके, सिर्फ ब्रॉड था, बाकी और कोई कंप्लेन आपको, डिविएशन वगैरह का कोई तकलीफ नहीं था, राइट? ओके, सिर्फ कॉस्मेटिकली आपको चौड़ा लगता था नोज़। कब कहीं पे ये स्मूथ था आपका? नहीं हम्प लगता था, ऊंचावट लगती थी? नहीं, बाकी सही था। बाकी सही था। ओके, so he says it was just the width of the nose which was bothering him, which is the broadness or the flare of the nose. This Dynapla seems to be quite sticky for him. Okay, ठीक है। We'll do a little bit of cleaning. आप देख सकते हो अभी, आपके पुराने पिक्चर्स भी दिखाएंगे। ओके, आपने जैसे कहा, एकदम सही कहा, कंसर्न था कि नाक फैला हुआ था। अगर आप देखोगे, आप मिरर में भी देख सकते हो, ये वाला पिक्चर आपका। ओके, हाँ, ये आपके पहले पिक्चर है, सर्जरी के पहले। आप जब आए थे आपका नोज़ स्ट्रेट था, लेकिन अगर आप फ्रंट व्यू, जो हम इस व्यू से अगर देखते हैं, आपकी नोज़ ऐसे लैटरली बहुत फैला हुआ है। प्लस आपका नोज़ टिप स्ट्रेट है, लेकिन टिप ऐसा है कि उसमें वॉल्यूम नहीं है। टिप एकदम पतला है, फ्लैट है जिसको बोलते हैं। हमने नोज़ पे वर्क किया है, डॉर्सम पे, यहाँ का जो चौड़ापन था वो उसको कम किया है। तो हमने एक डिफाइंड टिप दिया है। हम साइड व्यू देखेंगे। ओके, टर्न करो, ये वाला व्यू देखो। इस पे नोज़ फैला हुआ है, इतना अप्रिशिएट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एकदम बोनी स्ट्रक्चर दिख रहा है डॉर्सम का। टिप जो है इट इज़ ड्रूपिंग डाउन, थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अगर एंगल देखोगे, अभी आप आपका प्रोफाइल देखोगे, बोनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर इज अ हम्प। इट्स अ स्मूथ कॉन्ट्यूर स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडिक्स, एंड टिप है उसको हमने अपवर्ड पॉइंटी बनाया है। ऐसा नहीं कि नीचे ड्रूप हो रहा है लैक्सिटी के साथ। आपको एलआर बेस भी चाहिए था, इसलिए हमने वो क्या, इस व्यू पे भी आप अप्रिशिएट कर सकते हो। आप थोड़ा टुवर्ड्स योर लेफ्ट, नहीं, आप सर बस टर्न कीजिए, उस साइड देखो। हाँ, राइट। अभी आप मिरर में देखो, ये आपका पुराना पिक्चर, ये पहला, तो आप बेटर अप्रिशिएट कर पाओगे। आपको दिख रहा है आपका जो नोज़ था पहले, ये यहाँ पे एक डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बाद एकदम पॉइंटीनेस शार्प आ रहा है, हम जैसा, वो हमने स्मूथ किया है, ग्रेजुअल कर्व दिया है। और यहाँ पे जो टिप है, ऑल ऑफ अ सडन ऐसे सपोर्ट नहीं है, यानी नीचे ड्रूप हो रहा है, हमने उसको स्ट्रेट कर्वेचर दिया है, राइट। बाकी व्यूज़ में भी चाहिए तो आप कंपेयर कर सकते हो। इस व्यू से भी आप देख सकते हो, लुक अप, या इस व्यू से अगर आप देखोगे, यहाँ डिप्रेशन है, डेफिनेटली नोज़ फैला हुआ है। अभी देखो नोज़ वेल डिफाइंड है, इन स्पाइट ऑफ स्वेलिंग अभी ये रिजल्ट है। इट विल ओनली गेट बेटर।
टिप जो है एकदम टिप नहीं लग रहा है, इट्स लुकिंग क्वाइट ब्रॉड, क्योंकि इतना पोर्शन में सपोर्ट नहीं ऐसा लग रहा है और नीचे की तरफ है। सिमिलरली अगर एलआर बेस भी देखो, मैं नहीं बोलूँगी आपका बहुत चौड़ा था या फैला हुआ था, लेकिन सिंस वी वांटेड टू मेक द बेस प्रोपोर्शनेट टू द डॉर्सम, हमने इस पे भी काम किया। यू कैन लुक अप, हाँ अगर आप देखते हो अभी ऊपर देखो, कंपेयर कर सकते हो। आपको पतला चाहिए था, आपके हिसाब से जैसा चाहिए था, वी ट्राइड गिविंग यू ऑल दोज लाइक अ टिक इन ऑल दोज बॉक्सेस। या हीलिंग में कोई डिफ़िकल्टी? नहीं सही। केयर लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू द नोज़ हीलिंग और भी आगे, क्योंकि आपके में पतला किया है मतलब ऑस्टियोटॉमी वर्क हुई है। ऑस्टियोटॉमी वर्क होता है तो फिर 4 हफ्ते तक हीलिंग में एटलीस्ट मिनिमम बोल रही हूँ टाइम लगता है, विच इज़ 1 मंथ। आगे भी प्रिकॉशंस लेने हैं। डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एज सच आपको कुछ नहीं है, बट ज़्यादा स्टीम वगैरह नहीं लेना है और कुछ भी ऐसे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं करना है प्रैक्टिस जिससे नाक को धक्का लग सकता है। ये स्टिचेस हम निकाल देंगे अभी, ठीक है, और क्लीन कर देंगे। ओके, थैंक यू।